Good morning class. Welcome to the psychology classroom. I hope you all are fine and very happy, and just be fine at home and make your parents also be fine and healthy and be positive. Okay, I always suggest you all to be positive in every way. So be positive and make your family also be happy. So with this, I am going to start my class. So children, basically we are doing the revisions. In terms of the revisions, we had touched almost everything. Now some of the points, little bit points which we have to discuss and which are left. So that we will discuss today. So let us study about. So children, we had almost done all the chapters we have covered. Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3. The Chapter 1, Introduction to Psychology. Chapter 2, Methods of Inquiry in Psychology. Chapter 3, The Basis of Human Behavior. Chapter 4, Human Development. Chapter 5, Sensation, Attentional and Perceptual Process. And Chapter 6, Learning. And Chapter 7, Memory. तो हमने सभी चीज़ें डिस्कस और डील कर ली. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द इन्फेंसी पीरियड. इन्फेंसी पीरियड को आज हम लोग डिटेल में जानेंगे, विच इज रिलेटेड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर. सो द टॉपिक ऑफ अवर टुडे इज इन्फेंसी. इन्फेंसी स्टेज के बारे में हम लोग डिटेल में जाएंगे और इसे डिस्कस करेंगे. ओके, इन्फेंसी वो स्टेज है जो जस्ट बर्थ के बाद होता है. इट इज़ अ स्टेज विच स्टार्ट फ्रॉम 0 to 2 years का स्टेज जो है वो हम लोग इन्फेंसी कहते हैं, या पर्सन जो है वो इन्फेंट होता है. ठीक है. ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत ही अमेजिंग रेट से होता है इस स्टेज में. सो आई वॉन्ट टू बी क्लियर विद यू. The brain develops at an amazing rate before and after birth. Okay, you have already read about the parts of the brain and the important role played by the cerebrum in human functions such as language, perception and intelligence. Cerebrum वो पार्ट है हमारे ब्रेन का जिसे बिग ब्रेन कहा जाता है, और ये फोर ब्रेन का ही पार्ट होता है सेरिब्रम, जो कि मैक्सिमम ब्रेन का जो एरिया है वो सेरिब्रम से ही कवर होता है. सेरिब्रम बिग ब्रेन होता है. सेरिब्रम को सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी कहा जाता है. ठीक है. ये सेरिब्रम ही हर एक चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ऑल द कॉग्निटिव फंक्शंस आर डन बाय दिस सेरिब्रम. जितने कॉग्निटिव फंक्शंस है वो सेरिब्रम ही करते हैं, चाहे वो इट इज़ रिलेटेड टू लैंग्वेज, memory, decision making, problem solving, everything is done by the cerebrum. Our cerebrum is also known as cerebral hemisphere. It is divided between two parts. It just look like a walnut. हमारा ब्रेन जो है एक वॉलनट की तरह दिखता है. आप देख सकते हो ये बीच में एक हेमिस्फीयर होता है, और ये जो मीडियम होता है जिससे ये दो हेमिस्फीयर कनेक्टेड होते हैं, दैट इज नोन एज कॉर्पस कैलोसम. कॉर्पस कैलोसम हम इसे कहते हैं. ओके. सो ये भी डेवलप हो जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग द व्हेन द चाइल्ड इज इन द वॉर्म ऑफ द मदर एंड आफ्टर दैट ऑल्सो. Just before birth, the newborns have most but not all brain cell. सारे brain cell नहीं होते हैं, and the neural connection among these cells develop at a rapid rate. The newborn is not helpless as might you think. This is again a very important, sometime asked in the question form also, कि ये जो न्यूबॉर्न होते हैं ये पूरी तरीके से हेल्पलेस नहीं होते जितना आप सोचते हो. आपको लगता है कि वो पूरी तरह से हेल्पलेस होते हैं, वो कम्प्लीटली आप पे डिपेंडेंट होते हैं, बट ऐसा नहीं होता. न्यूबॉर्न कम्प्लीटली हेल्पलेस नहीं होते हैं.
The activities needed to sustain life function are present in the newborn. न्यूबॉर्न में लाइफ फंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे ब्रीथ करना, सक करना, स्वेलो करना और डिस्चार्ज द बॉडीली वेस्ट. ब्रीथ करना, सक करना, स्वेलो करना और बॉडीली वेस्ट को डिस्चार्ज करना, तो ये सब काम वो खुद करते हैं, उनके लिए कोई नहीं करता. इसलिए हम कहते हैं कि वो पूरी तरह से हेल्पलेस नहीं होते हैं. The newborn in their first week of life are able to indicate what direction a sound is coming from and can distinguish the mother voice from the voice of other women and can intimate simple gesture like tongue protrusion and mouth opening. Means ये सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन्फेंसी स्टेज की. जो इन्फेंट होते हैं, जिन्हें हम न्यू बॉर्न बेबी भी कहते हैं, वो पूरी तरह से हेल्पलेस नहीं होते. वो बहुत सी चीज़ें खुद करते हैं. वो बॉडली वेस्ट डिस्चार्ज करते हैं, वे सक करते हैं, ईटिंग करते हैं, सब चीज़ें वो करते हैं. उनके कुछ स्मॉल गेस्चर होते हैं, जैसे माउथ ओपन करना, एंड व्हेन दे नीड एनीथिंग दे ट्राइड, या फिर व्हेन दे गेट हर्ट ऑल्सो. तो उनके बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होती है, दे यूज़ देयर नॉन वर्बल गेस्चर एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थ्रू विच दे डिलीवर द मैसेज. और हाँ, न्यूबॉर्न में साउंड की भी कैपेसिटी डेवलप हो जाती है, यानी ऑडिटरी कैपेसिटी डेवलप हो जाती है. उन्हें मालूम होता है कि साउंड कहाँ से आ रहा है, वो डायरेक्शन पहचान लेते हैं. दे टर्न देयर हेड इफ़ यू हैव केयरफुली ऑब्जर्व द न्यूबॉर्न चाइल्ड. देन जो न्यूबॉर्न होते हैं वो अपने मदर वॉइस को सेकेंड अदर पर्सन की वॉइस से डिफ्रेंशिएट भी कर लेते हैं. ओके, कुछ डेवलपमेंट हैं जो कि इन्फेंसी स्टेज में होते हैं, जिसे हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो पहले हम लोग मोटर डेवलपमेंट डिस्कस करते हैं कि इन्फेंसी स्टेज में मोटर डेवलपमेंट क्या होता है. मोटर यानी समथिंग विच इज रिलेटेड टू दी मूवमेंट. Okay, motor development. So we are discussing about the infancy stage. ठीक है, इन्फेंसी स्टेज हम लोग डिस्कस कर रहे थे. इन्फेंसी स्टेज में बहुत सारे चेंजेस होते हैं पर्सन के लाइफ में, मीन्स उस न्यू बॉर्न के में. लाइक अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली ऑलरेडी कि न्यू बॉर्न का जो ब्रेन होता है वो डेवलप हो रहा होता है. उस टाइम ब्रेन सेल्स अभी भी जो हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं. ब्रेन सेल जब वो वॉर्म में रहता है, मदर के वॉर्म में रहता है, उस समय भी ब्रेन सेल डेवलप होता है. पर जैसे ही न्यूबॉर्न होते हैं पूरी तरह से ब्रेन सेल डेवलप नहीं होते, वो हो रहे होते हैं. इसमें आपके बुक में जो लाइन दिया है कि न्यूबॉर्न इतने हेल्पलेस नहीं होते जितने लोग को लगता है कि न्यूबॉर्न आर मोर हेल्पलेस एज यू आर थिंक, बट वो नहीं होते, क्योंकि वो बहुत सी चीज़ें वो खुद से करते हैं. बहुत सी चीज़ें होती हैं जो वो खुद करते हैं. So children, we are discussing about the motor development. मोटर डेवलपमेंट क्या होता है इन्फेंसी में? The newborn movements are governed by reflexes, which are automatic, built-in response to stimuli. They are genetically carried survival mechanism and are building blocks for subsequent motor development. Before the newborn have had the opportunity to learn, reflex act as adaptive mechanism. Some reflexes are present in the newborn. अगर मोटर डेवलपमेंट की बात करें इन्फेंसी स्टेज में, तो मोटर डेवलपमेंट के टर्म में रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं न्यूबॉर्न में, और वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं. जैसे कुछ रिफ्लेक्स होते हैं जैसे कफिंग, स्नीजिंग, छींकना, खांसना, ठीक है, यौन करना, ये सारे रिफ्लेक्स एक्शन है. आपने पढ़ा ही होगा बच्चों, रिफ्लेक्स एक्शन मतलब होता है कि विच आर इनवॉलेंटरी, जिन पे आपका कंट्रोल नहीं होता, वो ऑटोमेटिक होते हैं. तो कुछ रिफ्लेक्सेस ऑलरेडी न्यूबॉर्न में प्रेजेंट होते हैं जो आपको मोटर डेवलपमेंट के ही टर्म में डिस्कस करना है. As the brain is developing, physical development also progresses.
As the infant grows, the muscles and nervous system mature, which lead to the development of finer skill. Basic physical यानी motor skill include grasping and reaching for object, sitting, crawling, walking and running. The sequence of physical motor development is universal with minor exception. Exception मतलब कहने का मतलब है कि मेच्योरिटी टर्म में ये रिलेटेड है. कुछ बच्चे बहुत जल्दी दौड़ते हैं, कुछ बच्चे बहुत जल्दी चलना सीखते हैं, कुछ बच्चे बहुत देर में चलना सीखते हैं. तो अगर फिजिकल मोटर डेवलपमेंट की बात करें तो इन्फेंसी में कुछ रिफ्लेक्सेस पाए जाते हैं जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं न्यूबॉर्न में. इनके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं जैसे रनिंग करना, वॉकिंग करना, क्रॉल करना, ठीक है, सिटिंग, बैठना, स्लीपिंग, ये सारी चीज़ें मोटर डेवलपमेंट के टर्म्स में इन्फेंसी में होता है. सिंपल रिफ्लेक्सेस के अलावा कुछ मेजर रिफ्लेक्सेस होते हैं जो कि न्यूबॉर्न में पाए जाते हैं. ये सारी चीज़ें बच्चों आपको मोटर डेवलपमेंट में ही पढ़नी है. तो हम लोग वन बाय वन सारे रिफ्लेक्सेस डिस्कस करते हैं. फर्स्ट रिफ्लेक्स इज रूटिंग. रूटिंग रिफ्लेक्स पाया जाता है न्यूबॉर्न में. ये होता क्या, रूटिंग में होता क्या? टर्निंग द हेड एंड ओपनिंग द माउथ व्हेन टच ऑन द चिक. अगर आप उनके चिक पे टच करो तो वो अपने माउथ को ओपन करते हैं, अपने हेड को टर्न करना, ये सारी चीजें रूटिंग में आती हैं. ये उनके मेजर रिफ्लेक्स होते हैं, ये उनके सारे मोटर डेवलपमेंट के पार्ट होते हैं. दैट कम अंडर दी. We are studying about the infancy stage and we had discussed that so many development take place during infancy stage. Sensory abilities, cognitive development, socio-emotional development and motor development. We are discussing about the motor development. Motor development क्या होता है बच्चे का? As the child is born, as the child takes the birth. So in terms of motor development, some reflexes are present in the newborn. कुछ reflexes हैं जो कि newborn में present होते हैं. वो general reflex होते हैं, primary reflexes होते हैं जो already present होते हैं. इनके अलावा कुछ major reflexes होते हैं जो कि यहाँ discuss किए गए हैं. Rooting, Moro, Drax and Berenstein. You are all able to see on the board. Rooting में क्या होता है? Turning the head and opening the mouth when touch the cheek. Rooting वो रिफ्लेक्स होता है जब बच्चा अपना हेड टर्न करता है और उसकी चिक पे अगर हैंड रखो तो वो जो है वो माउथ को ओपन करता है. ये रूटिंग होता है. Turning the head and opening the mouth when any hand was on the cheek. Then come the Moro reflex. Moro reflex में क्या होता है? There is a loud noise. The baby will throw his or her arm outward and then bring the arm together as if grasping something. ये मोरो रिफ्लेक्स होता है. रूटिंग के बाद है, मैंने लिखा है मोरो में जैसे बच्चे ने कभी बहुत तेज आवाज़ सुनाई दी तो उस आवाज़ तेज की वजह से वो अपने हाथ पैर ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है, दे थ्रो इट एंड देन दे डर के मारे ग्रैब्स कर, जैसे लगता है कोई चीज़ ग्रैब्स कर रहा है, मतलब अपने लेग को ओपन करना और देन उसको क्लोज करना, ठीक है, इनवर्ड, आउटवर्ड एंड इनवर्ड. So what happened? So these are some of the reflexes, major reflexes. First one is the rooting and another one is the Moro. Rooting, turning the head and opening the mouth. Moro, when hearing a loud noise, turning their body inward and then turning their body outward. The third reflex is grabs. When a finger or some other object grabs, नाम से पता चल रहा है कोई ऐसी चीज पकड़ना. जैसे बच्चों के हाथ के उनके फिंगर के पास अगर आप अपनी फिंगर ले जाओ या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट ले जाओ तो वो तुरंत उसको ऐसे पकड़ लेते हैं. दैट इज अ ग्रास्प रिफ्लेक्स विच इज फाउंड इन द न्यूबॉर्न बेबी.
All these things you have to study under the motor development. The last one is Babinski. When the bottom of the baby's foot is toe, the toes fan out and then curl. जैसे बेबीज के फूट के पास अगर आप टिंगल करो तो उनके फूट जो होते हैं वो ऐसे ओपन हो जाते हैं, देन कर्ल हो जाता है. उनके ऐसे जो पैर होते हैं ऐसे पहले ऐसे ओपन होंगे, देन कर्ल हो जाता है. दैट इज बेबिंस्की. तो ये कुछ मेजर रिफ्लेक्सेस हैं जो कि मोटर डेवलपमेंट के टर्म्स में हम आप सभी को पढ़ रहे हैं और विच इज फाउंड इन द न्यूबॉर्न बेबी. रूटिंग, टर्निंग द हेड, ओपनिंग द माउथ. Moro, when hearing a voice, open their arms, then do inside. Grabs, like if you make their object, anything you near to them, so what they will do, they will grasp it. Babinski means when you tingle, so they open their things and then toes जो है उनको वो कर्ल आउट कर लेते हैं, मीन्स दबा लेते हैं ऐसे. तो ये कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं जो कि न्यूबॉर्न में दिखते हैं. मोटर डेवलपमेंट तो हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया. अब आते हैं सेंसरी एबिलिटीज. सेंसरी एबिलिटीज के बारे में पढ़ते हैं. सेंसरी एबिलिटीज क्या होती हैं न्यूबॉर्न चाइल्ड की. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि न्यूबॉर्न जो होते हैं उनकी लाइक जैसे ही वो बॉर्न होते हैं दे आर एबल टू आइडेंटिफाई द मदर्स वॉइस. वो मदर की वॉइस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं एंड दे कैन डिफ्रेंशिएट देयर मदर वॉइस विद सम स्ट्रेंजर्स वॉइस. दूसरा, साउंड किस डायरेक्शन से आ रही है दे कैन ऑल्सो डिटेक्ट. न्यूबॉर्न का अगर विजन की बात करें, ये तो हमने ऑडिटरी इंफॉर्मेशन की बात की, ऑडिटरी सेंस ऑर्गन की बात की. अगर विजन की बात करें तो इनका जो विजन होता है एडल्ट विजन से कम होता है. 6 मंथ्स तक ये इम्प्रूव हो जाता है और फर्स्ट ईयर तक यानी जब बच्चा 1 साल का पूरा हो जाता है तो उसका जो विजन होता है वो कम्प्लीटली नॉर्मल विजन की तरह होता है या एडल्ट विजन की तरह होता है 20/20 का. पर जैसे ही बॉर्न होता है तो वो जो एडल्ट विजन है उससे कम होता है उसका. कलर की बात करें तो या दे विल बी एबल टू डिटेक्ट द कलर, दे माइट बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड वाइट कलर, बट इन जनरल दे आर कलर डेफिशिएंट. एंड फुल कलर विजन डेवलप बाय 3 मंथ्स ऑफ एज. जब बच्चा जो है वो 3 महीने का हो जाता है तब फुल कलर विजन डेवलप होता है. तो बच्चों हम लोग ने इन्फेंसी स्टेज के बारे में, उसके मोटर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, क्या मोटर डेवलपमेंट होता है बच्चों. देन हमने पढ़ा कि सेंसरी डेवलपमेंट क्या होता है. तो ऑडिटरी के बारे में हम लोग ने डिस्कस कर लिया. विजुअल में आपने अभी अभी जस्ट जाना कि नॉर्मल विजन से यानी एडल्ट विजन से कम विजन होता है न्यूबॉर्न बेबी का. जो वो 1 ईयर का हो जाता है तो उसका पूरा एडल्ट विजन हो जाता है. कलर उतनी नहीं पहचान होती है. जब 6 महीने का बच्चा हो जाता है तब उसको प्रॉपर कलर डिफरेंशिएशन होने लगता है. और स्मेल एंड टेस्ट कैपेसिटी जो होती है वो न्यूबॉर्न में प्रेजेंट होती है. स्मेल यानी ऑल्फैक्टरी और टेस्ट यानी गस्टेटरी. तो ये ऑल्फैक्टरी और गस्टेटरी सेंसेशन न्यूबॉर्न में प्रेजेंट होते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट इट वन. Now moving toward the next development which we have to study in infancy is cognitive development. The next one is cognitive development. Cognitive development क्या होता है infants का. Cognitive development की बात करें तो इस पे जीन पियाजे ने बहुत स्टडी किया है. जीन पियाजे की थ्योरी भी है चाइल्डहुड से रिलेटेड, मतलब इन सारी चीज़ों से डेवलपमेंट से रिलेटेड. उनकी थ्योरी का भी नाम है जीन पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कुछ स्टेजेस बताए हैं. मतलब कहने का ये है कि जैसे डिफरेंट स्टेजेस होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के. लाइक पर्सन पहले इन्फेंसी में होता है,
फिर वो चाइल्डहुड में जाता है, फिर एडल्सेंस में जाता है, फिर एडल्टहुड में जाता है और ओल्ड एज में जाता है। सिमिलरली जीन पियाजे के अकॉर्डिंग भी कुछ स्टेजेस होते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, ठीक है। उन्होंने सबसे पहला सेंसरी मोटर स्टेज बताया, फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल, ये 4 स्टेजेस जीन पियाजे ने बताया। इनकी थ्योरी ही थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इनका मेन फोकस था कि हम लोग अभी तक क्या बात कर रहे हैं, हम लोग अभी तक सारी चीज़ें फिजिकल डेवलपमेंट की बात किया, क्योंकि सेंसरी एबिलिटी या मोटर डेवलपमेंट सब फिजिकल से रिलेटेड है। बट अब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी समथिंग विच इज रिलेटेड टू द माइंड, समथिंग विच इज रिलेटेड टू द कॉग्निशन, समथिंग विच इज रिलेटेड टू द थॉट। ओके, सो इसकी बात कर रहे हैं। तो ये इसमें जीन पियाजे ने सोचा कि बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, किस तरीके से होता है। इसके लिए उन्होंने खुद अपने बच्चों को ऑब्जर्व किया था। ही हिमसेल्फ ऑब्जर्व हिज ओन चाइल्ड, देयर ओन चाइल्ड, और कुछ फाइंडिंग्स उनकी हुई जिससे उन्होंने एक थ्योरीज बनाई। तो जीन पियाजे के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द जीन पियाजे, जो इन्फेंसी स्टेज होता है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जीन पियाजे का फर्स्ट स्टेज होता है, दैट इज द सेंसरी मोटर स्टेज। वो जीन पियाजे का सेंसरी मोटर स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज, जहाँ पे सेंसेशन और मोटर डेवलपमेंट इन्वॉल्व हो। So let us study about the cognitive development. Does a 3-year-old child understand the same way as would an 8-year-old child? This is a question which is Piaget asked from you all, but I think the answer is no. एक 3 साल का बच्चा क्या उसी तरह से सोच सकता है जिस तरह से 8 साल का बच्चा सोचता है? डिफरेंस होगा। Jean Piaget stressed that children actively construct their understanding of the world. Information does not simply enter in their mind from the environment. As children grow, additional information is acquired and they adapt their thinking to include new ideas as they improve their understanding of the world. Piaget believed that a child mind passes through a series of stages of thought from infancy to adulthood, which I told to you right now. उन्होंने ये कहा कि जो चाइल्ड होता है वो ना ही सिर्फ इंफॉर्मेशन अपने माइंड में स्टोर करता है, जबकि मतलब जो आप सिर्फ बता रहे हो सिर्फ वही नहीं स्टोर करता, उनके अलावा जो चीज़ें वो देख रहा होता है, सुन रहा होता है, वो भी स्टोर करता है। अगर आपके पास आसपास कोई बच्चा हो या फैमिली में कोई बच्चे हों या स्कूल में होते ही हैं तो आप ट्राई टू ऑब्जर्व दैट, ठीक है। मेरा भी खुद का ऑब्जर्वेशन है तो मैं बता सकता हूँ कि यस इट इज़ ट्रू दैट बच्चों को जितना सिखाया जाए वो तो वो सीखते हैं, बट उससे कई ज़्यादा वो जो देखते हैं, जो वो सुनते हैं और जो वो ऑब्जर्व करते हैं वो उससे ज़्यादा वो सीखते हैं, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे जीन पियाजे ने कुछ स्टेजेस दिए थे जो मैंने अभी बताया आपको। सेंसरी मोटर स्टेज इन्फेंसी का स्टेज होता है, देन उनका सेकंड था प्री ऑपरेशनल जो कि चाइल्डहुड स्टेज कहा जाता है। कंक्रीट ऑपरेशनल जो है आपका वो भी चाइल्डहुड में ही आता है और एडोलसेंस में आके फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आ जाते हैं बच्चे, ठीक है। Each stage is characterized by a distinct way of thinking and is age related. It is important to remember that it is a different way of thinking which make one stage more advanced than the other and not the amount of information. This also shows why you at your age think differently from an 8-year-old. The child during infancy, that is the first 2 years of life, experiences the world through senses and interaction with objects, through looking, hearing, touching, mouthing and grasping. न्यू बॉर्न जो होते हैं वो ज़्यादातर प्रेजेंट में जीते हैं। वो जैसे हम लोग की थिंकिंग और उनकी थिंकिंग में बहुत डिफरेंस होता है। हम लोग पास्ट भी सोचते हैं, प्रेजेंट भी सोचते हैं, फ्यूचर भी सोचते हैं। ये बहुत ही अच्छी टेंडेंसी होती है न्यू बॉर्न की कि वो सिर्फ प्रेजेंट में जीते हैं और प्रेजेंट ही को ही वो सोचते हैं। ये बहुत अमेजिंग क्वालिटी है हम लोगों की कि वो सिर्फ प्रेजेंट को देखते हैं और प्रेजेंट को ही सोचते हैं। इसीलिए उनके लिए एक फ्रेज बना है, व्हाट इज आउट ऑफ द साइड इट इज आउट ऑफ द माइंड। जो सामने से हट गया वो उनके दिमाग से भी हट गया।
वो सोचते नहीं रहते वो कहाँ गया कहाँ गया। जैसे हम लोग की थिंकिंग डेवलप हो जाती है तो हम लोग पास्ट अगर कोई चीज़ हमारे सामने से हटा दी जाए तो हमें मालूम है कि वो यहाँ हो रहा, इस पर्टिकुलर प्लेस पे हो रहा, या फिर हम उससे सर्च करेंगे कि वो कहाँ गया। पर न्यू बॉर्न के साथ ऐसा नहीं है। न्यू बॉर्न के साथ अगर आप किसी टॉय से उनको प्ले कर रहे हैं, वो टॉय आप कहीं भी रख दीजिए, दे डोंट बॉदर, क्योंकि उनके सामने से वो चीज़ हट गया यानी वो उनके माइंड से भी हटेगा। ये हमेशा याद रखिएगा। According to the Piaget, children at this stage do not go beyond their immediate sensory experience, that is, they lack object permanence. Object permanence यानी object permanence का जो concept है, मैंने लिखा भी है यहाँ पे object permanence. Object permanence का concept आता है इसमें. Object permanence का concept develop नहीं होता न्यूबॉर्न में। उनको ये नहीं होता कि ऑब्जेक्ट जो वो दिखा रहे हैं पेरेंट्स उनको, वो परमानेंट है, वो रहेगा। उनके लिए वो आपने उनके पास से हटा दिया तो वो चला गया, वो अब नहीं है, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का कंसेप्ट उनमें डेवलप नहीं हुआ होता है। Gradually, by 8 months of age, the child start pursuing the object partially covered in his or her presence. The basis of verbal communication seem to be present in infant. Vocalization begins with the infant's babbling sometime between 3 to 6 months of age. So these all things, like right now we study about the language development also. तो vocalization यानी vocal तो उनके में develop, basically they use the sign languages. 3 से 6 महीने के जब हो जाते हैं तो उनके में थोड़ा बैबलिंग करना और ये सब लैंग्वेज उनके डेवलप होने स्टार्ट होते हैं। तो हम लोग इन्फेंसी स्टेज पढ़ रहे हैं बच्चों और डिटेल में से पढ़ रहे हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट वन विच इज द सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। बिफोर मूविंग टू व्हाट दैट आई जस्ट मेक यू क्लियर, हमने मोटर डेवलपमेंट अच्छे से पढ़ा, क्या क्या चीज़ें होती हैं, रिफ्लेक्सेस पाए जाते हैं, कुछ प्राइमरी रिफ्लेक्स होते हैं, कुछ मेजर रिफ्लेक्स होते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमने पढ़ा, जीन पियाजे की थ्योरी के अनुसार न्यू बॉर्न जो है सेंसरी मोटर स्टेज में होते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस का कंसेप्ट नहीं डेवलप होता है उनके माइंड में। मोटर डेवलपमेंट में जो रिफ्लेक्सेस होते हैं जैसे लाइक मोरो, ओके, बेबिन्स्काई, ड्रैप्स, रूटिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। ड्रैप्स होता है, बेबिन्स्काई करते हैं, मोरो होता है, रूटिंग होता है। सेंसरी एबिलिटी में हम लोगों ने पढ़ा कि विजन जो है उनका एडल्ट विजन की तरह उनका डेवलपमेंट होता है जब वो 1 ईयर के हो जाते हैं। हियरिंग भी उनकी आफ्टर 6 मंथ्स, कलर विजन भी आने लगता है, उससे पहले नहीं होता है। रेड और ब्लैक समझते हैं, वाइट और ब्लैक बीच में डिफरेंस, अदर कलर्स का नहीं होता है। हियरिंग कैपेसिटी बॉर्न से डेवलप होती है। दे आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन मदर्स वॉइस एंड एनी अदर स्ट्रेंजर वॉइस एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द वॉइस। तो हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें इन्फेंसी स्टेज से रिलेटेड पढ़ी। अब हम लोग चलते हैं लास्ट, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है। बेबीज फ्रॉम बर्थ आर सोशल क्रिएचर. As infants start preferring familiar faces and respond to parents present by cooing and gurgling, they become more mobile by 6 to 8 months of age and start showing a preference for their mother's company. When frightened by a new face or when separated from their mother, children, एक बात याद रखिएगा पढ़ने से समय कि हम लोग न्यू बॉर्न की सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने उसके फिजिकल डेवलपमेंट की बात की, फिर हमने उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की, अब हम उसके सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट की बात, यानी जिस इन्वायरमेंट में वो बच्चा रह रहा है उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है बच्चे पे, या बच्चा क्या कैसे उसको अफेक्ट कर रहा है, ये पढ़ रहा है। तो ये देखा गया है जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, दे रिक्वायर्ड द मोर अटेंशन ऑफ देयर मदर और देयर पेरेंट्स, उनको अटेंशन और चाहिए होती है, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ों को समझने लगते हैं। अराउंड 6 to 8 मंथ दे ऑलवेज सर्च फॉर देयर मदर। 6 से 8 महीने के बाद के बच्चे मदर को सर्च करने लगते हैं। और जो क्लोज इमोशन बिटवीन the close emotional bond of affection that develop between infants and their parents is called attachment. यही स्टेज होता है
यही इन्फेंसी स्टेज होता है जहाँ बच्चों में अटैचमेंट का कंसेप्ट डेवलप होता है। अटैचमेंट का कंसेप्ट उनमें डेवलप होता है। इसके मोरल डेवलपमेंट में अभी नहीं डिस्कस। ओके, अटैचमेंट का कंसेप्ट डेवलप होता है इसी इन्फेंसी स्टेज में। इसमें एक स्टडी दी गई है हार्लो की, HARLOW, हार्लो 1962। हार्लो एक साइकोलॉजिस्ट थे, उनकी स्टडी दी गई है इसमें, ठीक है। और स्टडी क्या थी कि बेबी मंकी को उनकी मदर से सेपरेट कर दिया गया था 8 घंटे के लिए आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद उन्होंने बेबी मंकी को मदर से सेपरेट कर दिया था। बेबी मंकी को एक एक्सपेरिमेंटल चैम्बर में रखा गया and reared for 6 months by surrogates and children. This study was very long, so I just suggested that we will discuss, because it is a topic which is a social emotional development. It is also such a long topic, because here we are discussing about the two things, social development as well as the emotional development. So I just consider that up to the cognitive development you understood. In the tomorrow we will definitely discuss about the socio-emotional development during infancy. So I just hope that up to this one you prepared yourself very well. Thank you so much for continuous listening.